Thank you very much for talking to us today. Thank you for spending the time. I'll ask you by starting with a very fundamental question. Bihar traditionally has been very rich in resources. Biharis are the backbone of all industries across the country. But somehow Bihar has been a laggard as far as industrial development is concerned with the other states. What factors were responsible for that, and how has your government corrected them? I think it's a very apt question because, and in this, you have to go back to 1950s. The policy which were existent at that time, and particularly of rate equalization, because when Bihar was one, Jharkhand and Bihar, we were a one state. The major minerals were in the southern part of Bihar. At that time, centre's policy was of rate equalization. That suppose any state, suppose if someone is interested in making an investment in Bihar, that company would get the raw material at the same price which any other state will get the raw material. So what happened that all the resources, when you are paying the same price in terms of, rather they were paid subsidy in terms of transportation, so they got the raw material at a very reasonable price. So I think rather, if I'll say, it won't be an exaggeration that the policy which was prevalent in 50s and 60s, that helped the development or industrialization of other state, and somehow the other, the policy at that time, Bihar could not take advantage of it. Again, if you will see that when the passage of time, when the 1990s, when the economy started opening up in India, even we missed that opportunity for whatever reasons. I won't get into much of the details why we missed it, but we missed that. So the opportunity which Bihar got, and after 2000, the real challenge and the real question was that after bifurcation of Bihar and Jharkhand, now what Bihar will do. But fortunately, with the passage of time and with the new policies and the challenge which the Honorable CM Nitish Kumar took, and the amount of infrastructure which we spend on the building the infrastructure, I think that has helped us. And with the abundance of human resource, I think now this is the time for us to move on. So, what is the unique proposition that you are now offering to investors? Why should anyone look at Bihar? One is the locational advantage. I see that Bihar is very strategically located. We have a huge population of our own, and it's a big market. If you will see in terms of a market, Bihar is a big market with a population of roughly 13 to 14 crores. We border to Nepal. The longest border passes through Bihar. So any opportunity which comes, any company or any investor can also plan of catering to the needs of Nepal. Apart from parts of eastern Uttar Pradesh, we are close to Bengal. We are close to northeastern states. If you will see the connectivity and with the national highways. Now the entire northeast, I always say that Bihar has become a gateway for the entire east and northeastern part of India. Bhutan is also close. Bangladesh, though Bangladesh is disturbed now, but even we are close to Bangladesh. So this is the advantage, abundance of water, which is scarcity in different states. We are blessed to have abundance of water, though at times we face much of challenge and pain because of floods. But even then, our soil and the youngest population, if you'll compare with the population of different states in India, Bihar has the advantage of having the highest young population among the other Indian states. These are our main strength, and I see that in coming days, Bihar has the potential of becoming the major growth engine for the entire eastern part of India. That's very fascinating to hear that. So, what are the priority sectors that the government of Bihar has identified for attracting investments? Everyone has to see that where our core strength lies. I see huge potential in the IT sector, because if you will see pan India or maybe across the globe, you will find professionals from Bihar who are working in big multinational companies or IT companies. So IT is one of the potential sector. Textile, because if you'll see after agriculture, textile has the potential of employing the highest number of people. So textile is another sector which suits Bihar, and it suits our policies, it suits our core strength. So textile is another sector, and fruit processing. If you'll see the major cultivation of vegetables and fruits, we are leaders in
couple of them. So food processing is another sector. Biofuels is emerging as a big sector, particularly ethanol and compressed biogas, CBG. Apart from that, there are big power projects also coming. If you will see power projects coming, maybe on renewable energy and other things. Tourism, I'm the Minister for Tourism also. Tourism has got a huge potential. We have an exclusive tourism policy to attract private investment. And we are blessed because if you'll see in terms of religious tourism or ecotourism, waterfalls, tiger reserves, bird sanctuaries. So Bihar has got everything. So these are a key sectors which definitely Bihar has an advantage, and different departments. We are, suppose if I'm a minister for industry, we have our own industrial policy, but there are different departments also which they have very specific policies also. So when we are presenting Bihar. It's not only that the mandate which fits in for the industry department, because industry department has the mandate and we facilitate rather all the departments and we coordinate. Big metro projects are also coming. So I think it's a huge, but if you will see what our core strength lies, I'll say information technology, textile, food processing, biofuels. There are a couple of cement factories which are coming, leather, and I see the advantage Bihar. And fortunately, we have policies also which encourages these kinds of investment or these sectors. So these are a few prominent sectors, and we have abundance of human resource. So you will see that wherever, if you talk about textile factory, the people from Bihar are the ones who are working in other states. So we have a skilled human resource also. So I think it's a huge opportunity for Bihar, and plus the area which is on which we are focusing, definitely we are making policies also which suits that specific sector. एक समय था जब बिहार में कहते थे सब लोग बाग आने से डरते थे, कानून व्यवस्था की एक बड़ा समस्या थी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना ज़्यादा खास नहीं था, रोड्स बहुत अच्छी नहीं थी. अब क्या बदल गया है दोनों कानून व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जो इन्वेस्टर्स आपके यहाँ के आके इन्वेस्ट करेंगे? देखिए, आई ऑलवेज से दिस दैट बिहार हैज़ बीन विक्टिम ऑफ परसेप्शन. हम लोग कहीं ना कहीं एक छवि के शिकार रहे हैं कि बिहार में ये नहीं हो सकता या बिहार में अच्छी चीज़ें नहीं हो सकती. और आई एम वन ऑफ दोज फॉर्चुनेट पर्सन, जब 2005 में ऑनरेबल नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता ने भरोसा करके वो उनकी सरकार बनी, तो मैं उस मंत्रिपरिषद का भी हिस्सा था. तो ये जो 19 ईयर्स, अभी 19 वर्ष हुए हैं इसी नवंबर महीने में, तो जो एक बदलाव हुआ है, हमने भी देखा जब पहली बार हम चुनाव लड़के आए तो कनेक्टिविटी नहीं थी, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी. बट टुडे वेर एवर यू गो इन बिहार, अगर आप रिमोट पार्ट में भी जाते हैं, आपको अच्छी सड़कें दिखेंगी, बिजली हर एक गांव में आपको दिखेगा. तो वो जो एक बिहार में जो एक मिसिंग था, बिकॉज इफ़ यू लुक एट इन्वेस्टमेंट, या किसी भी इन्वेस्टर को क्या चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, उसको अपनी सेफ्टी चाहिए, अच्छी कनेक्टिविटी चाहिए, अच्छी उसको सड़क चाहिए, बिजली चाहिए. तो फॉर्चुनेटली नेशनल हाईवेज हमारी अब बहुत अच्छी हो गई हैं, एक्सप्रेस हाईवेज आ रही हैं विद द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. जो ऑनरेबल पीएम ने में क्या सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हर एक स्टेट को अब ये रीजनल इम्बैलेंस का दौर चला गया. जो एक क्षेत्रीय असंतुलन की बात पहले होती थी ना, गॉन आर दोज डेज. नो, एवरी स्टेट को मौका है, हर एक राज्य को मौका है कि आप आगे बढ़िए. तो पॉलिसी अच्छी है, और फॉर्चुनेटली हमारी लीडरशिप यहाँ बिहार में इतनी अच्छी रही है कि इस 19 वर्षों में हमने बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिया. अब हमारा समय सही लगता है, बिकॉज देयर वाज अ टाइम व्हेन बिहार हैड विटनेस नेगेटिव ग्रोथ रेट. तो एक दौर वो भी था, लेकिन आज बिहार में प्रगति अच्छी हो रही है, इंफ्रा हमारा बढ़िया है. अब हमें इन्वेस्टर के, वी ऑलवेज से बिहार है तैयार, जो हमारे एक हैशटैग को आप देखेंगे, वी ऑलवेज यूज बिहार है तैयार, बिकॉज वी फील, एंड ऑनेस्टली वी फील कि अब बिहार एकदम रेडी है इन्वेस्टमेंट के लिए. और अब बिहार में जो माहौल आपको चाहिए किसी भी इन्वेस्टर को किसी इन्वेस्ट करने के लिए, तो बिहार इज रेडी फॉर इट. So is the double engine sarkar actually working for Bihar as well? नो, डबल इंजन सरकार इज डूइंग वंडर्स. अगर आप देखेंगे तो वो बहुत, मतलब अभी के भी अगर केंद्रीय बजट में आप देखेंगे तो केंद्रीय बजट में जो इंफ्रा सपोर्ट वी हैव गॉट इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेस हाईवेज और पावर प्लांट, या टूरिज्म में, या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो हमें मिला है गया में, जो आने वाले समय में सबसे बड़ा वो इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के तौर पर वो बनेगा. दैट्स इज ह्यूज सपोर्ट. और व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्क्स टुगेदर, बहुत सपोर्ट मिलता है. और वो बिहार को हर एक क्षेत्र में मिल रहा है. टूरिज्म में भी यू आर अवेयर दैट गया, बोध गया, राजगीर, नालंदा के लिए स्पेसिफिक उसको कॉरिडोर के तौर पर डेवलप करने के लिए मिला है.
कलकत्ता अमृतसर कॉरिडोर में जो 7 इंडस्ट्रियल नोड्स बनाए गए हैं उसमें गया हमारा एक है, जहाँ हम लोगों ने 1700 एकर्स लैंड एक्वायर किया है कि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया वो बनेगा। वहीं पे फॉर्चुनेटली गया और दरभंगा को कनेक्ट करने के लिए एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है। तो जो ये नॉर्थ साउथ का भी लोग जो अगर आप कहेंगे कि नहीं डिवाइड है, तो ये जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा पूरे बिहार के लिए बनेगा। और आने वाले समय में जिसमें जितने इन्वेस्टमेंट होंगी, एक एक्सपेक्टेशन है कि 25,000 करोड़ से भी अधिक के निवेश यहाँ आएंगे, 1,10,000 से अधिक जॉब्स क्रिएट होंगे। तो ये तभी हो पा रहा है व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक विजन के साथ काम कर रहा है। फॉर्चुनेटली बिहार में उसके अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। So, can you briefly touch upon the incentives, fiscal or otherwise, that the government of Bihar is offering the investors, which will attract them to come to it? देखिए बहुत बहुत सारे हैं। इफ यू विल सी दैट वी हैव अ फ्यू सेक्टरल पॉलिसीज आल्सो, इंसेंटिव पॉलिसीज, वो अपनी जगह है। यहाँ पे आपको चाहे हम वो इलेक्ट्रिसिटी में भी आपको हम कुछ कंसेशंस देते हैं। बिहार से एक्सपोर्ट्स नहीं होती थी तो हम एक्सपोर्ट्स के लिए भी आपको उस पर इंसेंटिव्स दे रहे हैं, कुछ सब्सिडी दे रहे हैं, कुछ ट्रांसपोर्टेशन में आपको हम कुछ सपोर्ट कर रहे हैं। जो हमारा जीएसटी वाला है उसमें हम रियम्बर्स आपको करते हैं। लैंड कन्वर्जन में आपको फ्री है, अगर आप उसमें जा रहे हैं तो आप उसकी रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो वो आपको फ्री है। किसी किसी केसेस में जो कैपिटल इंसेंटिव है, सब्सिडी, हम वो भी देते हैं। तो अलग अलग तरह के हैं और ये कहीं वेरी करता है, कहीं हम 5 इयर्स के लिए भी दे रहे हैं, कहीं अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं 7 इयर्स के लिए भी दें। तो अलग अलग है। और 2016 की हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी एंड आई थिंक 8 इयर्स हैव गॉन। तो एक समय भी आया है कि हमें अपनी पॉलिसी पे रिविजिट करना है। तो आने वाले समय में वो भी इट्स हाई ऑन आवर प्रायोरिटी कि हम आने वाले समय में उस पर भी हम वर्क करेंगे। 2 SEZ हमें मिले हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, बिहार के पास कभी नहीं था, उसको भी अभी हमें डेवलप करना है। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि हमारी जो पॉलिसीज भी अट्रैक्टिव है, वो भी लोगों को अट्रैक्ट कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात है, व्हेन वी टॉक अबाउट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वी रियली मीन इट। सिंगल विंडो अगर हम कहते हैं तो सिंगल विंडो रियली वर्क्स, एंड नॉट ओनली एट द टाइम ऑफ अप्रूवल, इवन एट टाइम ऑफ द डिसबर्सल ऑफ द इंसेंटिव्स। किसी को सचिवालय आने की जरूरत नहीं पड़ती, गवर्नमेंट ऑफिस में आने की जरूरत नहीं पड़ती। देयर इज नो पॉइंट इफ यू आर मेकिंग बिग प्रोमिसेस बट यू आर नॉट डिलीवरिंग वट एवर प्रॉमिस वी आर मेकिंग, वी आर डिलीवरिंग इट। तो ये एक सबसे बड़ा अंतर है कि अगर हमको एवरी क्वार्टर अगर हमें रिइम्बर्स करना है, एवरी क्वार्टर वी आर डूइंग, उस कंपनी के अकाउंट में सीधे पैसे जाते हैं, उसको कहीं आने की जरूरत नहीं है। That's really good to hear. Bihar state GDP has actually outpaced the national average in last couple of years. Do you think this growth rate will sustain? You will continue to outpace the national average, growing at a faster pace with all the policies that you and your government have put in place? I think if you'll see where we started in 2005-2006, जब एनडीए गवर्नमेंट बनी जेडीयू और बीजेपी की, अगर हम उस टाइम से देखेंगे तो विद द बजट विच वी हैड एट दैट टाइम इन 2005-2006, मे बी अराउंड 28,000 करोड़ के आसपास का बजट रहा होगा। एंड टुडे वी हैव अ बजट ऑफ 2,79,000 करोड़। इट ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ अ बेटर फिस्कल मैनेजमेंट, कि हमारी फिस्कल मैनेजमेंट हमारी अच्छी रही और हम लोगों ने जो भी हमारे बजटरी प्रोविजंस थे, वी वर एबल टू यूटिलाइज आवर फंड्स। बिकॉज एक ऐसा टाइम भी आया था जब फंड्स यूटिलाइज नहीं होती थी एंड फंड्स यूज टू सरेंडर्ड, कि वो पैसे वापस लौटने पड़ते थे। और अगर आप पिछले 18-19 वर्षों में इफ़ यू विल सी द जर्नी ऑफ बिहार एंड आर ग्रोथ एंड इफ़ यू विल स्टडी आर ग्रोथ रेट, वी हैव मेंटेन्ड अ रेगुलर पेस। अगर आप हमेशा देखेंगे, हमेशा हम लोग नेशनल एवरेज से बेटर रहे। एंड यू हैव टू ऑलवेज कंसिडर दैट फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड। हमने शुरुआत हमने कहा कि ऐसा नहीं था दैट जब हम लोगों ने शुरू किया तो हमें ग्रोथ रेट 7-8% पर मिले और उसको हम लोग आगे बढ़ाए। मैंने आपको बताया था देयर वाज अ टाइम व्हेन बिहार हैड विटनेस नेगेटिव ग्रोथ रेट। तो उस नेगेटिव ग्रोथ रेट से हम आज आगे बढ़ते हुए लगातार 18 वर्ष 19 वर्ष में वी हैव मेंटेन अ गुड ग्रोथ रेट। ये एक साधारण बात नहीं है। अगर कोई भी इकोनॉमिस्ट होंगे तो इस बात को समझेंगे कि बिहार ने एक बेटर ग्रोथ रेट मेंटेन किया है और आने वाले समय में नेशनल एवरेज से भी हम बेटर हैं। बट स्टिल नाउ वी आर लुकिंग एट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अब हमको इसको सस्टेन करना है, आगे बढ़ाना है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट 2047 एज अ विकसित भारत, तो विकसित भारत में जो बिहार की भूमिका होनी है या विकसित बिहार की जब हम बात करते हैं तो डेफिनेटली वो चाहिए। बिहार विकसित होगा तभी हमारा विकसित भारत बनेगा। तो इट्स नॉट ओनली पब्लिक स्पेंडिंग जो हम वेलफेयर में स्पेंड करते हैं, दैट इज देयर, बट एट द सेम टाइम वी नीड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री उस डायरेक्शन में काम कर रहा है। वी नो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम समझ रहे हैं और वी आर वर्किंग इन दैट डायरेक्शन। Share of Bihar state in the overall GDP of the country
is around 4% odd. So do you think this can double by the time भारत विकसित भारत बनता है 2047 में? नहीं, आप देखेंगे इफ यू विल सी जो हमारा पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन में हम जो देश के पॉपुलेशन में हमारा जो हम जितने परसेंट हैं उस हिसाब से हमारा अभी भी हम पीछे हैं. मतलब इसमें कहीं इट्स नॉट अ डिनायल, हम पीछे हैं. लेकिन डेफिनेटली हमारा जो प्लान है अब हम जैसे वी ऑलवेज से कि अब हम यहाँ से जो आगे बढ़ रहे हैं मतलब अब आई बिलीव एंड आई स्ट्रांगली बिलीव नॉट बिकॉज आई एम द मिनिस्टर बट एज अ बिहारी ऑल्सो आई स्ट्रांगली बिलीव कि अब आने वाला टाइम इज ऑफ बिहार. मतलब अब समय बिहार का है. अब बिहार में ही अगर आप देखेंगे जिस तरह के एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आ रहे हैं या लोग बात कर रहे हैं, gone are those days when people they were not willing to even talk about बिहार. बट आज मुझको लगता है कि एक बिहार का एक बज़ क्रिएट हो रहा है. मतलब पीपल दे हैव स्टार्टेड. अच्छा बिहार भी है. अभी जैसे एशियन वुमेन हॉकी चैंपियनशिप हुई, मतलब वो एक साधारण बात नहीं है. अगर आप देखेंगे कि 6 एशियन कंट्रीज की मतलब एक इतना बड़ा चैंपियनशिप हमारे बिहार में हुआ, राजगीर में हुआ. वी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड इट. तो अब हर एक सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं. अगर आप इस चीज़ को अगर देखें तो जो इन्वेस्टर के लिए भी आई ऑलवेज से कि नहीं, आप अपने जहाँ पर आपकी यूनिट है यू कंटिन्यू वर्किंग विद दैट यूनिट. लेकिन अगर इफ़ यू आर एक्सपैंडिंग, अगर आप चाह रहे हैं कि हम नहीं डाइवर्सिफाई करें, हम किसी नए स्टेट में जाना चाहते हैं तो डू कंसिडर बिहार. और एक लेसन जो कोविड ने हमें सिखाया कि जब लॉकडाउन हुआ और फैक्ट्रीज भी बंद होने लगी तो बहुत लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि दैट इट्स ऑलवेज बेटर टू वर्क क्लोजर टू दी फैमिली या जहाँ वर्कर उनके हैं उनके गांव के नज़दीक काम करें. उनकी इफिशिएंसी भी बढ़ती है. और वही कारण है कि पोस्ट कोविड बहुत सारे स्टेट में यूनिट्स ऐसी थी जो काम कर रहे थे, उन्होंने बंद किया एंड दे रियलाइज्ड कि नहीं, उनका जो रियल वर्कफोर्स है वो बिहार में है. तो दे हैव सेट अप देयर यूनिट इन बिहार और आज बिहार में वो अच्छा कर रहे हैं, वो एक्सपैंड भी कर रहे हैं. तो एक बहुत अच्छा समय है और मुझको लगता है कि हम जहाँ भी पीछे थे 2047 का एक विजन है हमारा. उस 2047 में विजन में विद द एबल लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल सीएम नीतीश कुमार जी और जो केंद्र सरकार का हेल्प मिल रहा है और जो ऑनरेबल पीएम का जो विजन है उस विजन में हम लोग भी आगे बढ़ते जा रहे हैं. हर एक डिपार्टमेंट अपने हिसाब से काम कर रहा है. हमारा एक रोड मैप है, हर एक डिपार्टमेंट ने बनाया है और उस पर हम बहुत ही बेहतर तरीके से मजबूती के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत कैचवर्ड है एवरीवेयर, not only in India but everywhere in the world. People are facing joblessness. What is your government doing to create more employment? Your international policy is supporting that. You have a very good labor environment. You don't have too many trade unions. Lockdowns nahi hote hain. What is that you are now offering that will create more employment in the state? One thing is that you first need to define what is employment. Employment is just not limited to government jobs. बहुत बार हम ये सोचते हैं कि सरकार की नौकरियां ही नौकरियां हैं. आपको देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट जॉब्स इट ऑलवेज हैज अ लिमिटेशन. एंड विद द साइज ऑफ द पॉपुलेशन विच वी हैव, अगर डिपार्टमेंट में अभी भी जैसे ऑनरेबल सीएम ने ये बोला हुआ है कि हमें 12 लाख जॉब्स हमें देने हैं, तो एवरी डिपार्टमेंट इज वर्किंग टू फुलफिल टू एग्जीक्यूट दैट मैंडेट. हमारी जो वैकेंसीज हैं, वॉट एवर वैकेंसीज एनी डिपार्टमेंट हैज़ गॉट, तो ग्रेजुअली जो भी उसके प्रोसेस हैं रिक्रूटमेंट के, वी आर डूइंग दैट. बट एट द सेम टाइम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या जिसको आप जॉब क्रिएटर्स हम कहते हैं, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर, या जिसमें हमारे एमएसएमई भी आते हैं, हमारे स्टार्टअप्स आते हैं. अनफॉर्चुनेटली बिहार में वो कल्चर कभी नहीं था. दैट हमारी जो एक आप समझना पड़ेगा कि बिहार में जो लोगों की अपब्रिंगिंग होती है, इट्स इन अ वेरी प्रोटेक्टेड एंड अ सिक्योर्ड एनवायरनमेंट वेयर एवरीवन वांट्स अ गवर्नमेंट जॉब. तो वी आर नॉट वेरी ईगर एंड कीन टू एक्सेप्ट चैलेंज और हम अपना काम करते हैं. बट अब चीज़ें बदल रही हैं. एंड आई जस्ट कोट वन स्मॉल एग्जाम्पल. वी हैव ए स्कीम कॉल्ड मुख्यमंत्री उद्यमी योजना. इट्स अ फ्लैगशिप स्कीम जिसमें हम लोग अपने इंटरप्राइज शुरू करने के लिए डिफरेंट कैटेगरीज में वी आर गिविंग लोन एंड वी आर गिविंग ग्रांट. 10 लाख रुपीज़ हम देते हैं. तो लास्ट ईयर जितने एप्लीकेशंस आए थे, इस बार उससे डबल से भी ज़्यादा आए. मतलब वी रिसीव्ड अबाउट मोर देन 5,40,000 एप्लीकेशंस जिसमें बिहार के लोग अपने इंटरप्राइज को शुरू करना चाह रहे थे. जस्ट इमेजिन कि अगर हमारे यहाँ जितने पंचायत्स हैं या हमारे यहाँ जितने एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स हैं, अगर कोई एक सक्सेसफुल एंटरप्राइज खड़ा होता है तो उसके साथ कितने फैमिलीज जुड़ जाती हैं. अगर आप एवरेज अगर 10 लोगों को भी अगर आप रोजगार आप दे पाते हैं तो आप सोचिए कितनी बड़ी संख्या है.
तो हमारा एम्प्लॉयमेंट पर हम जब हम बात करते हैं, जॉब्स अपनी जगह हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, इन्वेस्टमेंट लीड्स टू एम्प्लॉयमेंट। Right. हमारे यहाँ निवेश बढ़ेगा तो हमारे यहाँ रोजगार भी बढ़ेगा। एट द सेम टाइम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे भी हम काम कर रहे हैं। तो जिनकी रुचि है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर भी बढ़ रहे हैं। डिफरेंट स्कीम्स हैं, चाहे प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट हो, हमारे यहाँ लघु उद्यमी है, या हमारे यहाँ मुख्यमंत्री उद्यमी है, या स्टार्टअप है, या हमारे यहाँ कोई अलग स्कीम हमारी चलती हैं, तो वो अपनी जगह है। निवेश भी आ रहे हैं। तो मुझको लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने स्किलिंग में भी काफ़ी काम किया है। तो आने वाले समय में एक स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स बिहार में है, लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर कोई निवेशक आता है, और आज में एक क्या बदलाव मैं फील करता हूँ, दैट वी आर नॉट कंसर्न मच विद दी व्हाट इज द साइज ऑफ द इन्वेस्टमेंट, बट वी आर मोर इंटरेस्टेड टू नो दैट व्हाट इज द साइज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट विच दैट इन्वेस्टमेंट विल क्रिएट। तो ये एक अप्रोच मुझको लगता है हर एक जगह ये बदल रहा है कि हमारे लिए, अगर आप टेक्सटाइल की ही बात करें, इन्वेस्टमेंट साइज कम होगा लेकिन जॉब्स जो क्रिएट होंगी वो कहीं ज़्यादा होगा, रादर देन इफ अ बिग फैक्ट्री इज कमिंग जहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा लेकिन जॉब्स कम क्रिएट होंगे। तो उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। आई एम क्वाइट पॉजिटिव that in coming years the youth of Bihar will have plenty of opportunities in terms of government jobs, in terms of private sector opportunities, and even for startups and setting up their own enterprises. Lastly, we are just few weeks away from Bihar Business Connect. Second edition, first edition was a watershed event, 50,000 crore rupees of investment commitments that you got. What are your expectations from the second edition, and is there a particular theme that you're looking at in this second round of edition? इस बार के if you will compare the Bihar Business Connect which happened in 2023, I think this time the major difference would be that we are not working in silos. It's not just the two-day event will not only see the industry department, but it will see Bihar as a whole. डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अपने अपने सेशंस होंगे, उनकी पॉलिसीज होगी, दे विल टॉक अबाउट देयर अपॉर्चुनिटीज इन दैट डिपार्टमेंट, they would answer the queries of the investors if they have specific to their department. So we would be presenting Bihar and the investment opportunities which are available in Bihar. तो ये एक बहुत बड़ा एक शिफ्ट है हमारा, जो लास्ट ईयर का हमारा जो बिहार बिजनेस कनेक्ट हुआ था उसके कंपैरिजन में 2024 इज टोटली डिफरेंट। डिफरेंट सेशंस हम लोग कर रहे हैं, वो जो और भी बेटर होगा, ज़्यादा इंटरैक्टिव होगा। एंड जो भी आ रहे हैं, मतलब जो एक इनिशियल इंटरेस्ट बहुत दिख रहा है लोगों का टू नो अबाउट बिहार एंड दी अपॉर्चुनिटीज़, तो इन टर्म्स एक बहुत बेटर रूप में बिहार लोगों के सामने आएगा। दूसरा, साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट वी आर नॉट लुकिंग एट दैट। लास्ट ईयर वी रीच्ड 50,000 का था, एंड आई एम हैप्पी टू शेयर दैट उसमें मेजर इन्वेस्टमेंट्स का जो एग्जीक्यूशन है दैट हैज स्टार्टेड। सो इट्स नॉट जस्ट दैट इट्स लिमिटेड टू ओनली पेपर्स दैट MOUs वर साइन्ड एंड नथिंग फाइनली हैपेंड, बट थिंग्स हैव रियली मूव्ड एंड द इन्वेस्टर्स have their interest and units have started functioning now. तो वो एक बड़ी चीज़ है। तो इस बार हमारा अमाउंट मैटर नहीं करता। आर थ्रस्ट इज दैट यू विजिट बिहार, वॉट एवर क्वेरीज यू हैव इन योर माइंड, आप आइए बिहार, देखिए बिहार, घूमिए, वेर एवर यू वॉन्ट टू विजिट यू विजिट बिहार। हम लोग आपको फैसिलिटेट भी करेंगे आपके विजिट्स को। आप इन्वेस्ट करें ना करें वो बाद की बात है, लेकिन आप बिहार आइए। और जो बिहार का जो एक टर्न अराउंड है, जो बिहार का जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है, और जो ये बढ़ता हुआ बिहार है जो आज विच इज़ फुल ऑफ एस्पिरेशंस, मतलब जो हमारे भी जो यूथ हैं पूरी आकांक्षाओं से भरे हुए हैं, उस बिहार को देखिए, हमारे नए बिहार को देखिए। और आई थिंक व्हेन पीपल विल कम हियर, हमारे बिहार की खासियत है कि हम बहुत इमोशनली कनेक्ट होते हैं। तो कोई भी इन्वेस्टर आएगा तो एक इमोशनल बॉन्डिंग होगा उसका बिहार के साथ। वो सिर्फ एक रिलेशन की वो निवेशक है और वो स्टेट है, वो नहीं होगा। और आई बिलीव कि जो बिहार की ग्रोथ जर्नी है, उस ग्रोथ जर्नी का हिस्सा वो बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में कोई इन्वेस्टमेंट अगर होता है तो ना सिर्फ गवर्नमेंट, नॉट ओनली इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, बट द पीपल ऑफ बिहार लोगों को सर आंखों पर रखेंगे। जो एक होता है ना कि नहीं, एक आपको एक रॉयल ट्रीटमेंट मिल रहा है, एक रॉयल वेलकम मिल रहा है, और सब लोग चाहते हैं, जो आज का जो यूथ है हमारा, वो सब चाहता है कि नहीं बिहार में अच्छी चीज़ें हों। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हम एक मिल रही है, जो बिहार बिजनेस कनेक्ट होने वाला है 19-20 दिसंबर को। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड, एंड आई थिंक बिहार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और एक बिहार का जो ट्रांसफॉर्मेशन की जो जर्नी विच हैज़ स्टार्टेड,
वो और गति के साथ हम आगे ले So, चलेंगे. is it a pivotal moment for Bihar that we are now experiencing? Is it Bihar pivoting towards a आप कह सकते हैं. आई थिंक when we say that it's a new बिहार, डेफिनेटली कभी कभी ये भी कहते हैं बिहार एक लैंड ऑफ हिस्ट्री रहा है. मतलब if you'll see there was a time when the entire history revolved around बिहार. और अब आने वाले समय में बिहार एक लैंड ऑफ इंडस्ट्री भी होगा. मतलब वो जो हमारी यात्रा है उसको देखेंगे. एंड आई वुड लाइक टू कोट व्हाट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैड सेड व्हेन ही विजिटेड नालंदा यूनिवर्सिटी. और नालंदा यूनिवर्सिटी, यू नो दैट एक पूरा एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, और एक समय था जब नालंदा यूनिवर्सिटी का एक अलग रेपुटेशन था. तो जो नई बिल्डिंग हमारी बनी, जो नई यूनिवर्सिटी बनी, उसमें ऑनरेबल पीएम व्हेन ही विजिटेड नालंदा एंड व्हेन ही इनॉग्रेटेड द न्यू कैंपस, ही सेड कि बिहार का जो वैभव था, जो बिहार का जो एक वैभव था, उस खोए हुए वैभव को बिहार पुनः प्राप्त करने की दिशा में बढ़ रहा है. मतलब दैट इज अ सिंबल कि हम कहाँ थे, जो हमारा एक गौरवशाली अतीत रहा है. वी हैव अ वेरी प्रॉमिसिंग फ्यूचर. और बिहार आने वाले समय में आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा अपने नेशन की इकॉनमी पे, नेशन के डेवलपमेंट में. एंड बिहार नोज द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि विकसित भारत, आई अगेन से, विकसित भारत बढ़ना है तो विकसित बिहार बनाना है. एंड वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट. एंड दिस इवेंट बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 विल बी अ बूस्टर फॉर इट. Thank you. Thank you very much, sir, for talking to us, and all the very best Thank for you so your much. Thank you so much.